So I will cover, this is our second unit. So what do we mean by regression analysis and what are the different types of regression analysis and how will model data and dependent data, all those things. And in addition to that, scatter plot. This is the first topic of the second unit. So consider like, so we'll start regression analysis. So this is my regression analysis. So what do you mean by regression analysis? So basic definition is like this regression is a statistical tool. Fine. So this is a statistical tool that can be used. So it is used for let's say investigating a relationship between dependent. We'll cover what do we mean by dependent variable, dependent and independent variables. So we'll cover that what are the variables. Now we are having two types of variable in statistics, like random variable and so on. Fine. So basically, this dependent and dependent variables, we are having two types of variables: dependent variables and independent variable. Fine. So uh, and we'll to find the relationship in between this independent and dependent variable. So the major use of this regression analysis is for prediction of new things and forecasting of new things. So these are the two major uses of this particular regression analysis. Now when we are covering the application of this regression analysis, so we are in lots of applications like economics, lots of application in economics. Then we have lots of application in management. We have lots of application in life and biological sciences. Okay. And, uh, and then physical and chemical sciences. Physical and chemical sciences. We have lots of application in addition to that. And basically, when we are in the engineering, we are using it in the engineering and then social sciences and so on. So lots of application in each and every field. So first we'll discuss what are the dependent variable and what are the independent variables. Fine. Let's say uh, let's say we are considering two variables. Let's say an example like mm, 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 uh, age of a person and height of a again. So these are two variables: age of a person and height of the person. So we can say that as your age increases, the height of your particular person increases, and after some time this height uh, stops increasing. Fine. So these are two variables. Then again we can consider like uh, like for advertisement. So we are saying that investment or let's say uh, rupees spent in advertisement and the sales of a particular item. So these are again an set of independent variables and dependent. Just a minute, आप लोग 1 मिनट होल्ड करिएगा. मैं है ना, मैं नेटवर्क बदल लेता, मैं मोबाइल से था, so I'm just connecting again to my another network. Just another network. I don't think so. This is rupees and rupees spent in advertisement and sales of it. So again, let's check which are the dependent variables and which are the independent variables. So डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम दो चीज़ों पे ध्यान दें कि एक है एज ऑफ पर्सन और एक दूसरा है हाइट ऑफ पर्सन। आप इसमें देखें कि एज पर क्या एज किसी पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो वी कैन से दैट दिस एज इज इंडिपेंडेंट। हम बात करें हाइट, हाइट क्या डिपेंड कर रही है एज पर? एनी रिस्पॉन्सेस? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। फाइन, सो एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir. Yeah, fine. So what is the dependent variable? So we can say that the height is dependent. ठीक है, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी वैसे हाइट बढ़ेगी। देन अगेन लेट्स से रुपीज स्पेंड इन एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल ऑफ आइटम्स। अब इन दोनों में आप देखें कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, बता सकते हैं इसमें? विच इज द रुपीज स्पेंड इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स ऑफ एन आइटम? जितना पैसा हम खर्चा करेंगे उतनी सेल्स बढ़ेगी। तो जितना पैसा खर्चा करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। सो दिस इज रुपीज स्पेंड, ये हमारा क्या हुआ? ये हम इसको बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और ये हमारा क्या हो गया? हमारी सेल्स हो गई। ये हमारी क्या हुई? ये दो चीज़ें हो गई हमारी, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फाइन, अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है। फाइन, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन these two different things like dependent variable and independent variable. Well, so again let's say हम एक सिंपल सा एक टॉय एग्जांपल लेके चलते हैं। टॉय मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, तो हम वापस वो लिख लेते हैं दिस इज माय एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, दिस इज माय एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज सेल्स। ठीक है, तो हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में ले लेते हैं कि यार मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 1 थी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 2 थी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 3 थी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 4 थी, मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5 थी। हमारी सेल्स भी इसके हिसाब से कुछ डेटा होता होगा, दिस इज 1, अगेन दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4। तो ये अब हम इसको चेक करने की कोशिश करें कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्कैटर प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट देखा भी था, हमने आर में बनाया था, हम अभी एक्सेल में बना लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, डेटा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरा स्कैटर प्लॉट को मैं प्लॉट करता हूँ। तो दिस इज माय स्कैटर प्लॉट। तो अब देखो यहाँ पर मेरा एक्स क्या आ रहा है, मेरी एक्स एक्सिस क्या आ रही है? मेरी एक्स एक्सिस आ रही है मेरी ये एडवर्टाइजमेंट है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो यूजुअली वी रिप्रेजेंट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, मेरे कन्वेंशंस। हम हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको बोलेंगे कि ये हो गया हमारा y। ठीक, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया, ये देखो ये हमारा प्लॉट हो गया। अब क्या इस प्लॉट को देख के हमको समझ में आता है कि इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है? नहीं। चलिए ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, लेट्स से साइज ऑफ प्लॉट वर्सेस लेट्स से प्राइस ऑफ प्लॉट। हम इन दोनों को भी देख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा हो जाता है। लेट्स से स्क्वायर फीट में ले रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600। दिस इज प्लॉट की प्राइस भी रख लेते हैं। लेट्स से दिस इज 9, हम लेक्स में लेके चल रहे हैं। दिस इज अगेन 12, दिस इन लेट्स से 14, दिस इज अगेन लेट्स से 15, दिस इज अगेन लेट्स से 21, दिस अगेन लेट्स से 23। तो हम इसको फिर प्लॉट कर लेते हैं। कहाँ जाते हैं? इंसर्ट में जाते हैं और स्कैटर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो अभी हमने स्कैटर प्लॉट करा है।
So what is the basic definition of scatter plot? So scatter plot is nothing. It is just like a mathematical diagram. What is this? This is just a mathematical diagram. Again, I'm moving to my this particular data and I'm just deleting. So this is what is your scatter plot. This scatter plot is a mathematical diagram that displays what it displays the values of two variables. हमने बाइवेरिएट एनालिसिस पढ़ा था, सो मैंने बोला था कि वहाँ पे स्कैटर डायग्राम हम यूज करते हैं. तो व्हाट इज दिस स्कैटर प्लॉट? दिस स्कैटर प्लॉट इज एन मैथमेटिकल डायग्राम दैट डिस्प्लेज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स फॉर some set of data. So what is the advantage? So this is used to investigate the possible relationship between the variables. Fine. So what we are trying to do is that we are looking for relationship in between your different data. Fine. So let's say again consider these two diagrams over here. So we are having two different diagrams. So मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इन दोनों डायग्राम को पैरेलली इनके आसपास लाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो ये दो डायग्राम हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, so this is my two different diagrams. Now considering this two scatter diagrams, if the scatter plot, like these are the scatter plots, so if your scatter plot shows the linear relationship between your x and y variables or dependent and independent variables, then we can go for linear regression. So you can assume like this is just like in a straight line, the relationship between this data is your a linear line. Fine. So if we consider that this is an like linear relationship exists, so then we can say that this is an linear then we'll go for linear regression. Otherwise then we can go for another type of regression. So we'll consider what are the different types of regression and all those things. So this is just an scatter plot. Although we can have different types of data, like we can have like this is 4, then this is 5, this is let's say 8, this is let's say 9, this is let's say 10. Again, sorry, मैंने इसको उल्टा कर दिया ना. So this is like 10, this is let's say 8, this is let's say 4, this is again 3, and this is again 1. Fine. So this is again a linear relationship in between data. So although will go for different types of correlation, but yeah, we are still looking for the linear relation. Linear relationship समझ में आ रही है ना, कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, पर जो भी हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन के आसपास हो रहा है. यहाँ पे भी हमारा जो डेटा है एक स्ट्रेट लाइन के आसपास हो रहा है. So again we are again moving to the basic definition of our data. So this is our scatter diagram. So I'm not saving this. I don't want to save this. And again, let's say I'm moving to this. So consider again my data. So this is my particular data available. Fine. This is my data available. So this is my data. So this data, again, this data consists of your x and y. Fine. So this x is my the independent variables, and this is my set of dependent variables. Now again, when we are like move to the machine learning, so we can say that this x and y are the training examples of our data, or will train our data on this x and y. Fine. So we can say that this x are the independent variables, or these are the observation we'll get, and based on this particular observation we'll go for finding the y. This is usually we'll go for in machine learning. So for prediction we are having two different approaches. Fine. So one is regression analysis and second one is a classification analysis. Fine. So if this y, this particular y, if this particular y is continuous variables like integer value, float values, and all those things, types of value, these are continuous values that contains all the values in particular with
in the range, so this is a continuous variable. So if y is continuous variable, then we'll go for regression analysis, and if y is discrete, then we'll go for classification analysis. So we are not covering this because this is not available in our syllabus. We'll cover this regression analysis. So if our y is continuous, or that takes real values, so we can say that this is a regression analysis. So again, considering a particular data, so like consider this plot size. This is 500, 1000, 1200, 1300, 1500, 1750, 2000 and 2400. Fine. So based on this particular data, I am having the prices of our plot size. Fine. So again, consider, like can you tell me that which are the dependent variable and which are the independent variable in this particular data set? Any assumption or any hint from your side? The price is dependent. प्राइसेस आर डिपेंडेंट. फाइन. सो जैसे जैसे स्क्वायर साइज पर कुछ काम होगा तो हमारे प्राइसेस होंगे. तो वी कैन से दैट दिस स्क्वायर फिट are the independent variable and price depends on this square fit. So we can plot all this data in the scatter plot. So this is my, in the right hand side, this is my scatter plot available. So this is my house price. So in x-axis usually we represent this as an x-axis. So this is my x value and this is my particular y value. So I'll represent x over here and this is my y. So I think that you are comfortable with independent variable and dependent variable. Fine. This x are the observation, and we cannot say this that these x's are the random variable. We are not saying that these x are the random variables. While when we are coming to the y, we can say that these are the random variables. So these x's are not a random variable. You have to uh, note it down, like x's are not random variable. These are the observations and these observations are not random in nature. Fine. These are the facts. Fine. Again, y is a random variable. So this is my particular uh, scatter plot, and we can say like over here you can say that this is a straight line. So एक straight line के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं ना कोई एक relationship आ रही है. So we can say that this is a linear relationship. So if there is a linear relationship, then we can go for linear regression. So what is linear regression? So this linear regression or the simple linear regression use for investigating the linear relationship between your dependent variable and independent variable. Fine. So this is my linear regression. So we are having lots of data available for this. Lots of techniques are available for my linear regression analysis. While we can go for linear regression analysis, like this is an example of linear regression analysis. Then we can go for polynomial, we can go for exponential analysis, and so on. So we are having lots of data and we can go for lots of analysis available. Again, I am moving to my एक्सेल. मैंने उसको शायद छोड़ दिया, तो हम वापस इस पे आते हैं और मैं इस एक्सेल पर ही आता हूँ. या सो दिस इज माय एक्सेल डेटा अवेलेबल. सो दिस इज माय डेटा अवेलेबल. एंड अब हम इसमें क्या करते हैं, हमको यूजुअली क्या करना है, इनके बीच, इन पॉइंट्स के बीच में हमको एक लाइन ड्रॉ करना है. तो मैं थोड़ा सा मेरा डेटा जो है यहाँ पर चेंज कर देता हूँ. दिस इज माई 200. सो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 10 और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस डेटा का थोड़ा सा चेंज कि हमको एक लाइन ना मिल पाए. सो मैं इसको यहाँ पर 300 को अगेन कर देता हूँ 10. सो माई 300 इज अगेन, लेट्स से, नहीं मैंने क्या करा था. सो दिस इज माई डेटा. फाइन 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 फाइन. ओके फाइन. सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ. एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करा, यहाँ पर राइट क्लिक करा, देन मैं यहाँ क्या करता हूँ, एड ट्रेंड लाइन. दिस इज वी आर गोइंग फॉर रिग्रेशन एनालिसिस. तो आप यहाँ देखिए हमारे पास बहुत सारे एनालिसिस हमारे पास अवेलेबल है. दिस इज एक्सपोनेंशियल एनालिसिस, इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी. दिस इज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कि एक पॉइंट है, इसके आगे पीछे ही है. एक्सपोनेंशियल में ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो एक एक्सपोनेंशियल लाइन ड्रॉ हो रही है. मैं लॉगरिथमिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज माई लॉगरिथमिक रिग्रेशन एनालिसिस. मैं पॉलिनोमियल एनालिसिस कर रहा हूँ तो देखो पॉलिनोमियल एनालिसिस. अब मैं इसका ऑर्डर भी चेंज करता हूँ. देखो ऑर्डर में ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है. जैसे जैसे मैं ऑर्डर चेंज करता जाता हूँ, ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ये सारी लाइन जो है हर पॉइंट को
कवर करती जा रही है। ऑर्डर कम नहीं करेंगे, ऑर्डर कम करेंगे तो वो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। हम पावर पे बात करें, दिस इज माय पावर, तो इसने पावर पर भी हमारे पास ये लाइन लिया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन कैसी हो सकती है? वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, वो लॉगरिथमिक भी हो सकती है, वो पॉलिनोमियल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको डेटा को स्कैटर प्लॉट पे लाना है। और डेटा को अगर हम स्कैटर प्लॉट पे ले आए तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कौन सी लाइन से ज़्यादा बेटर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इज इट फाइन? इतना समझ में आता है कि हम स्कैटर प्लॉट क्यों ला रहे हैं? हम स्कैटर प्लॉट इसलिए ला रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि डेटा के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर भी आ जाए। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी आ जाए। मैं यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन ऐड कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आ गई। मैं एक्सपोनेंशियल आ रही है, लॉगरिथमिक, क्या सारे पॉइंट्स को डेटा को कवर कर रही है, नहीं कर रही। इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ये इसने सारा डेटा को कवर कर लिया। तो हमको ये देखना है कि हम ये जो पर्टिकुलर लाइन बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर लाइन क्या सारे डेटा कवर कर पा रही है या इनके बीच का बेटर रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अब इसका यूज़ क्या है? तो देखिए, मैंने बोला था कि इसका यूज़ आ रहा है फॉरकास्टिंग के लिए और प्रिडिक्शन के लिए। हम अभी फॉरकास्टिंग छोड़ दें, हम प्रिडिक्शन पे देख लें। तो हमारे पास डेटा था, लेट से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ये ग्राफ वापस नीचे ले आता हूँ हमारे इस डेटा के पास में। तो दिस इज माय साइज ऑफ प्लॉट अवेलेबल और ये उसकी प्राइसेस अवेलेबल है। ये हमारे पास डेटा है, दिस इज वेल एंड गुड। अब मैं चाहता था, हम अब प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, तो मैं पूछना चाहता था कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्लॉट हुज साइज इज 550। आप कैसे निकालेंगे? What is the price of plot whose size is 550? What is the price of plot whose size is let's say 250? क्या कर सकते हैं? कोई सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन बता सकता है हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर 500 और 600 का एवरेज। हाँ, 500 और 600 का एवरेज निकाल लें तो हमारे पास लेट से यहाँ पे 22 आ सकता है। गुड, एक तरीका। तो 250 का भी हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज निकाल लें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस इज 12। इज इट सो? एक तरीका ये हो सकता है। पर देखो यार, अब हमारा डेटा क्या हो रहा है? हमारा डेटा तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो हमको तो ट्रेंड पता ही नहीं चल रहा ना कि यहाँ से डेटा, देखो अगर इस लाइन में बात करूँ तो यहाँ से डेटा ऐसा जा रहा है ना। मैं इस लाइन को अगर मैं वापस चेंज करने की कोशिश करता हूँ, हम इस पे ऐड ट्रेंड लाइन करते हैं, ट्रेंड लाइन कर रहे हैं। तो ये देखो, ये लीनियर, ये वाली लाइन को मैं डिलीट करता हूँ, ये वाली इसके हिसाब से तो ऑन एन एवरेज कुछ अलग आ रहा है। हम पॉलिनोमियल पे बात करते हैं ना, हम इस डेटा को फिट कर रहे हैं। तो ये देखो, अगर 550 पे बात करते हैं तो 550 पे तो यार डेटा कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि हमको तो पूरा डेटा लेना पड़ता है ना। तो ये एवरेज तो एग्जैक्टली एवरेज नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पर हमारा जो डेटा है वो लीनियरली अवेलेबल है, तो हम इस लीनियर का अवेलेबल करते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको सीधी सी बात है कि ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स के बीच में एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। कैसे ड्रॉ करी, ये हमारा कैलकुलेशन हम बात करते हैं। तो एक ही लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमको क्या करना है? 550 से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना, यहाँ से इंटरसेप्ट। तो 550 पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 550 पर इसकी वैल्यू नियर अबाउट यहाँ आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यार 550 की प्राइस इतनी होगी। सिमिलरली 250 पे बात करें तो 250 हमारा यहाँ आ रहा है, तो 250 पर हम बात कर लेंगे कि 250 पर हमारी प्राइस नियर अबाउट यहाँ आ रही है। सो हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? सबसे सिंपल सी बात है कि हमको ये लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो हम यहाँ बोल देते हैं कि मैं लाइन की इक्वेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मेरी ये लाइन की इक्वेशन हो गई। फाइन, तो मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई। व्हाट इज हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो रही है? तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो रही है, दिस इज 0.0297
प्लस 4.93। तो हम यहाँ पर उस इक्वेशन को डाल दें तो हम उसमें वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ लाइक मेरे पास वैल्यू थी 550। तो मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर उस लाइन की इक्वेशन उठा लेता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0.0297 इंटू क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, प्लस क्या करते हैं हम इससे 4.933, हमने इतना कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो आपने कितनी बताई थी 22, यहाँ ट्रेंड लाइन में कितनी बता रहा है वो 21। हम सिमिलरली 250 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लें। 250 में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पर आ रही है 250 के लिए 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हम बात कर लें कि 275 के लिए कितनी वैल्यू हो सकती है। अब 275 का तो आधा हमको नहीं पता था, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर वैल्यू ले आते हैं। दिस इज 13.1। तो हमको ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है। चीज़ समझ में आ रही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ अलग आ रही है। तो अब हमको यूजुअली आइडेंटिफाई क्या करना है, इस चीज़ में हमको आइडेंटिफाई करना है ये दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हमको क्या देखना है, दिस इज लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, लाइन की इक्वेशन आ रही है मेरे पास, सॉरी लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, दिस इज लाइन की इक्वेशन आ रही है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये हम mx प्लस सी पर बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर सॉरी इसको यहाँ ले आता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये आ रही है mx प्लस सॉरी mx प्लस सी। तो अब देखें हमारे पास y क्या था, y अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। m क्या था, m भी हमको नहीं पता, m यहाँ से हमने पता करा। तो m हम क्या देख रहे हैं, m क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी में, m क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है। तो ये इस लाइन का स्लोप हो गया m, ठीक है ना। देन हमारे पास c क्या होता है, c होता है y लाइन के ऊपर इसका इंटरसेप्ट। तो ये इसके ऊपर y से कितने ऊपर से यहाँ जाएगी, तो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। ये तो हमको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब हम इसमें कैलकुलेशन देखें। अब इसमें हमको क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन है। तो यूजुअली हम अभी बेसिक कंप्यूटर साइंस की बात करें, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम में हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, हमारे पास इनपुट अवेलेबल होता है। तो हमारे पास इनपुट अवेलेबल होता है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास इनपुट अवेलेबल होता है। लेट्स से हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम अवेलेबल होती है, और इससे हम क्या निकालते हैं, हम उससे निकालते हैं आउटपुट। अब हमारे इस केस में, और बेसिकली अगर मैं उसको एमएल में या प्रिडिक्शन की बात करूं, तो हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है इनपुट, गुड है ना। या मैं इसको बोल दूं, यहाँ हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर्मूला, इसको मैं बोल दूं मॉडल, जो भी है, ठीक है। तो हमको हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है। दूसरा हमको क्या पता करना, हमारे पास क्या होता है, तो जैसे इनपुट में मेरे पास इनपुट क्या है, मेरे पास इनपुट है ये एक्स अवेलेबल्स है, ठीक है ना। ये एक्स अवेलेबल है मेरे पास, तो ये एक्स अवेलेबल है, इस एक्स अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल था, x अवेलेबल था, m अवेलेबल था, और c अवेलेबल था। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे y। चीज़ों पर ध्यान देना कि मेरे पास x अवेलेबल था, m अवेलेबल था, और मैं कैलकुलेट कर रहा था y। फाइन, तो दिस इज माय आउटपुट y में कैलकुलेट कर रहा था। अब हम स्टेटिस्टिक्स पर आ जाएं, मशीन लर्निंग पर आ जाएं। तो हमारे पास इनपुट क्या अवेलेबल है, हमारे पास इनपुट अवेलेबल है x, हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है एग्जैक्टली ये मेरा y था ना, मेरे पास y भी अवेलेबल है। तो मेरे पास आउटपुट क्या है, मेरे पास आउटपुट y भी अवेलेबल है। अब अननोन क्या है, हमारे पास अननोन क्या है, तो हमारे पास अननोन है ये फॉर्मूला। हमको मतलब हमारे पास एक्स हमको पता है, हमको वाई पता है, हमको क्या नहीं पता, तो हमको एम नहीं पता और हमको सी नहीं पता। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, विल एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ m
and C, and then based on this M and C, what we are trying to do, we build new model y equals to mx प्लस सी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी प्रिडिक्ट, व्हाट विल प्रिडिक्ट न्यू वैल्यूज ऑफ y ऑन अनसीन x। चीज समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास x अवेलेबल है, हमारे पास y अवेलेबल है, हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, m और c अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m और c की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस m और c को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है ना? एस्टिमेट करने के बाद क्या करेंगे, हम लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। जैसे हमारे पास वो लाइन की इक्वेशन आई थी यहाँ पर कि y इक्वल्स टू 0.097, और इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ थी, जैसे ये 550 थी या 250 थी, तो इन पर्टिकुलर बेस वैल्यू पर हम उन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, नई वैल्यूज प्रिडिक्ट करेंगे। सो दिस इज नोन एज प्रिडिक्शन। जो हमारे पास ये नोन डेटा था, नोन डेटा पे आप पूछते कि भाई 600 साइज की प्लॉट की प्राइस कितनी है, तो आप बता सकते हो, पर मैं बोलूंगा 550 की कितनी है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, 250 की कितनी है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, 275 की कितनी है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हमारे पास अननोन, हमारे पास इनपुट आउटपुट अवेलेबल है, और हम मॉडल आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन मॉडल का आइडेंटिफाई करने पर मतलब हम एम और सी, ये दो अननोन वैल्यूज हैं, इन दो अननोन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दिस उसके बाद हमारे पास जो नया डेटा आएगा, उस नया डेटा पे हम जो वैल्यूज आएगी, उन वैल्यूज को यूज करते हुए अनसीन एक्स की वैल्यूज पर हम वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। दिस इज आर रिग्रेशन, और यूजुअली यही हम मशीन लर्निंग में भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। गुड, बेसिक समझ में आ गया ना। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसमें मैथमेटिक्स चालू कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बेसिक अगर समझ में आ जाए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो मैं अब वापस आ जाता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे। सो हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस ये था कि हमको ये लाइन आइडेंटिफाई करनी थी। हम ये वाली लाइन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अनसीन वैल्यूज पर यहाँ से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालकर वैल्यूज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन ऊपर डाल दी, यहाँ से लाइन डाल दी, यहाँ से सारी वैल्यूज डाल दी, तो हमारे पास वो सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में ये कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट। So based on our particular regression analysis, we are having data. Let's say हम अभी simple linear regression analysis कर रहे हैं। simple linear regression analysis में हमारे पास single independent variable होता है और single dependent variable होता है। So this is my simple linear regression analysis. So in this linear regression analysis, this is observation and this is my output, और this is my dependent variable, और this is my target. हर जगह पर अलग अलग नाम होंगे, तो क्या बोल सकते हैं, this is dependent variable, this is output, और this is target. ठीक है, इनके। So what we are saying that when we apply regression analysis only and only when my y is continuous data. Fine, okay. So we are having lots of models are available, and the simplest is the simple linear regression analysis. And in our case, in this syllabus we are having linear regression analysis. Fine, so this is linear regression analysis. So what we are trying to do is that we like to fit our data. So this is my independent variable and dependent variable. We plot this data on my scatter plot with x and y values. Fine. So what we are trying to do is that we like to draw a line over here. So this is my line. So I like to draw this line, or when we are having multiple variables, like this is a simple linear regression analysis. Let's say when we are having मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, तो हमारे पास ये 3 डायमेंशन डेटा भी आ जाता है, और हमारे पास 3 डायमेंशन डेटा में यहाँ पर डेटा एग्जिस्ट करता है, और इन पर्टिकुलर डेटा पर हम क्या करते हैं, इन डेटा को फिट करने के लिए भी एक लाइन लेते हैं। तो अभी मैं इस लाइन की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, हाइपर प्लेन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशन में दिस इज लाइन, 3 डायमेंशन में दिस इज प्लेन, 4 डायमेंशन में फिर हमारे पास क्या होगा, उसके आगे की जितने भी डायमेंशंस होंगे उसमें हम उसको बोल देंगे दिस इज हाइपर प्लेन। फाइन, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी लाइक टू ड्रॉ अ हाइपर प्लेन
अब याद रखना, लाइन 2 डायमेंशन है तो लाइन, अदरवाइज 3 डायमेंशन है तो प्लेन, और उससे ज़्यादा के डायमेंशन है तो हम उसको बोल देंगे हाइपर प्लेन. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी लाइक टू फिट आवर डेटा. सो आई लाइक टू फिट आवर डेटा विथ बेस्ड हाइपर प्लेन. आई लाइक टू फिट आवर डेटा विद द बेस्ड हाइपर प्लेन. तो अब मेरे पास क्या केसेस हो सकते हैं, मेरे पास ये लाइन है, मैंने क्या करा, मेरा ये डेटा था, इस पर्टिकुलर डेटा पे एक बेस्ड हाइपर प्लेन 2 डायमेंशन है, तो दिस इज माई सिंपल 2 डायमेंशनल, दिस इज माई लाइन. सो इस लाइन को मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब क्वेश्चन आ सकता था कि भाई मेरे पास तो सब बहुत सारी लाइनें आ सकती थी, है ना. दिस इज बहुत सारी, एक्चुअली मैं देख लेता हूँ मेरे पास कहाँ है, या तो मेरे पास बहुत सारी लाइनें आ सकती थी यार, कि ये डेटा है जो ब्लू लाइन मैंने बोली थी, एक ये लाइन भी हो सकती है जो मेरा एक डेटा हो सकता था, और मेरी एक ये लाइन भी हो सकती थी. ये सारी लाइनें भी तो डेटा को फिट कर रही हैं. तो हमको क्या करना है कि हमको एक सबसे अच्छी लाइन फिट करनी है जो यहाँ पर ये बोल दे कि हमारा जो डेटा है उस डेटा को सेटिस्फाई कर रही है. तो हमको क्या करना है, हमको एक लाइन डिफाइन करनी है जो सबसे अच्छी हो. हमको सबसे अच्छी लाइन डिफाइन करनी है, ठीक है. तो अब हमारे बेसिक असम्पशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो अगेन अब हम वापस मैथमेटिकल मॉडल पर आ जाते हैं. तो दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा, फाइन. सो अब मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं लेके चल रहा हूँ, है ना. अब हम सिंपल से डेफिनेशन पे आ रहे हैं कि दिस इज माय आउटपुट डेटा, दिस इज माय y, फाइन, दिस इज माय y. देन हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, दिस लाइन को बोलेंगे y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, और हम इसको बोलते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है. सो बीटा इन जनरल हमारे पास जब जाता है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, बीटा थ्री एक्स थ्री, अप टू समथिंग. सो हम क्या बोल रहे हैं अभी, दिस इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन. तो बीटा नॉट क्या हो गया मेरा, बीटा नॉट हो गया मेरा इंटरसेप्ट, बीटा वन क्या हो गया मेरा स्लोप x के साथ, दिस इज माय m एंड दिस इज माय c. सो y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, ठीक है. अब मैं बीटा पे क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी एक मैं वेक्टर बनाऊंगा, तो मैं वेक्टर की वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करनी है, तो मैं उनकी वैल्यूज इंक्रीमेंट कर सकता हूँ ना. तो मैं क्या करूंगा, इनको बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज लेके चलता हूँ. तो दिस इज y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन. नाउ अब यहाँ पे आ रही है एक रैंडम एरर. अब चीज देखो, यहाँ पे एक चीज आती है रैंडम एरर. अब रैंडम एरर पे हम क्यों बात कर रहे हैं, हम इस डेटा पे आ जाए कि यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसमें कई बार नॉइसेस भी होती हैं, है ना, सही कैलकुलेशन नहीं होती. जैसे हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी लाइन थी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, पर हो सकता है कि किसी किसी नॉइस के कारण क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो ओरिजिनल डेटा से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, इसको फिट करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर एक रैंडम एरर भी ऐड कर देते हैं कि हर पॉइंट से रिलेटेड एक रैंडम एरर हमारे पास आ गई. तो क्या चीज हुई, दिस इज y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस सम रैंडम एरर. अब यहाँ पर फिर चीज याद रखें कि हमारे पास जो है ये रैंडम है, x हमारे पास रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल है, y भी हमारा रैंडम वेरिएबल है, और बीटा नॉट अभी हमको नहीं पता तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये भी रैंडम वेरिएबल है. चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बीटा नॉट क्या है, बीटा वन क्या है, एक्स वन क्या है और एप्सिलॉन क्या है. चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ओके फाइन, फाइन. सो दिस इज बीटा नॉट एक्स वन, फाइन. सो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास अब ये तो एक लाइन के लिए हो गया ना, है ना. मेरे पास अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूँ तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय एक्स वन, दिस इज माय वाई. अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और चल रहा है, ये आई और चल रहा है. तो आई क्या हो सकता है, दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू. तो अगर सुपर स्क्रिप्ट में लेके चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एक रो पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. और जब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं कॉलम्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो हम एक एक चीज़ पर हमको चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो हमारे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, तो n नंबर ऑफ सैंपल से भी हमको डेटा ट्रेन करना पड़ता है. एक भाई इस पॉइंट के हिसाब से तो बीटा वन लाइन हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास 10 वेरिएबल होंगे, 10 डॉट्स होंगे. तो ये भी एक लाइन पॉइंट, ये पॉइंट एक लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे. तो अब उनको इंडेक्स करना है, तो उनकी इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में लेके चल रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि हम एक एक वेरिएबल पे बात करेंगे,
सॉरी एक एक रो पे बात करेंगे, और जब मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉलम पे बात कर रहा हूँ। दिस इज कन्वेंशन। नाउ आर बेसिक असम्पशन। सो बेसिक असम्पशंस पर मैं बाद में बात करता हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। सो अभी मैं सिर्फ इतने पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है।